you have any doubt or any problem. Okay, so let's start. So we are talking about physical properties of non-metal. Physical properties of non-metal. But before starting the physical property of non-metal, we should know what are known metal. Then we will discuss about the physical properties. नॉन मेटल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. So do you remember in yesterday class we studied that metals are those substances which after releasing electrons change into positive ions. So in the same way we can define non-metal. So can anybody define the non-metal? Raise your hand if anybody know the definition of non-metal in term of ions, which we studied yesterday. Okay, yes, one raised hand, he is here. So yes, give the answer, beta. Who is this? Give the answer. Yes. Okay, what's your name, beta? What's your name? Okay, very good, beta. Okay, so as he said, let's see, let's describe it. Okay, how they form negative ions, we can learn it. Let's take the example of nitrogen, oxygen, and fluorine. And we know that nitrogen, atomic number of nitrogen is 7, atomic number of oxygen is 8, and atomic number of fluorine is 9. And we know that if we know the atomic number of an element, we can also find the number of electrons present in that particular atom. Okay, so in this case nitrogen has 7 electron, oxygen has 8 electron, and fluorine has 9 electrons. But we can distribute these electrons according to shell. So we know that in first shell these all elements will have 2 electrons in first shell, 2 electrons in first shell, in K shell. But in last shell, that is L shell, outermost shell, it has 5 electrons, it has 6 electrons, and it has 7 electrons. And we also know that the rule of octave. आपने octave का एक rule पढ़ा था. In that rule we studied that each and every element try to complete its octet, whether releasing electron or obtaining electron. So here we can see 8 electron complete करने के लिए, to complete its 8 electron, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, टू कंप्लीट ऑक्टेट. सो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in valence shell can be subtracted from 8, और जितना आएगा वो क्या होंगे हमारे पास, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इतने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव नाइट्रोजन कैन गेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स. आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म N3 minus ion. Similarly oxygen can gain 2 electron, and after gaining 2 electron it will form O2 minus ion. Similarly, fluorine required 1 electron, so after gaining 1 electron, it will form F minus ion. So number of electron gained by an element will increase that number of charge. ठीक है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो it will gain 3 negative charge. If it gains 2 electron, it will gain 2 negative charge. तो ये चीज ध्यान रखें. तो यहाँ पर क्या हुआ है कि neutral atom has changed into negative ion. Neutral atom has changed into negative ion after getting electron. ठीक है, so we can say substances or elements which can change into negative ion after getting electron are called non-metals. उन्हें हम non-metals कहते हैं. So that's why nitrogen, oxygen, fluorine, these are non-metals because they can change themselves into negative ions after gaining electron. So I think आपको ये पता चल गया होगा non-metal क्या है. तो अगर हम नॉन मेटल को डिफाइन करते हैं, इफ वी डिफाइन नॉन मेटल, सो वी कैन से एलिमेंट्स which can
which can be changed into negative ion, which can change into negative ion after gaining electron. ठीक है, are called non metals, तो इन्हें हम नॉन मेटल्स कह देंगे. ठीक है. नाउ ये तो नॉन मेटल हो गया. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. अब हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जैसे हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी. सो लेट्स सी द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. ओके, सो फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट. If we talk about the physical state of non-metal, so non-metal can be found in 3 physical states. ये आपको 3 physical states में मिल जाएंगे. They can be found in gaseous state, they can be found in liquid state, and they can be found in solid state. आपको ये तीनों ही स्टेट में मिलेंगे. जबकि मेटल के केस में आपने क्या देखा था? In case of metal, we studied that metal can be found mostly in solid state, but in some of the examples it can be liquid, like mercury. ठीक है, in mercury case it is liquid, but rest of the metals are in solid state. So here we can see the example of gaseous. So gaseous non-metals are, suppose we have oxygen, nitrogen, hydrogen, and helium, neon, argon, so on. These are the non-metals which are found in gaseous state. Okay, but there is also one non-metal which is found in liquid state. Can you name it? Anybody can name the non-metal which can be found in liquid state? Raise hand if anybody can give the answer. Is there any non-metal which can be found in liquid state? Do you remember any non-metal? Nobody? Okay, let's see. There is only one non-metal which can be found in liquid state, that is Br2. Br2 is bromine. Okay, so bromine is found in liquid state. It is a non-metal and it is found in liquid state. And rest of the elements are mostly found in gaseous or solid state. There is one student who want to ask anything, I think. Okay, Khushi Agarwal. Yes, Khushi, want to ask anything? Okay. Rajvardhan is also there. He has also raised his hand. Yes, Rajvardhan, want to ask anything? No? Okay. Yes. Yes, Rajvardhan. Actually, okay. Let me explain you. Let me clear you. Actually, we are here talking about at normal temperature and pressure, normal condition. But in normal condition, we know that oxygen is found in gaseous state. But when the pressure is applied on the oxygen, and the temperature is reduced, in that case, oxygen can be changed into liquid. But in normal condition, oxygen is found in gaseous state. So that's why we will count it into gas. Okay. Otherwise, if we apply the pressure on oxygen and we will decrease the temperature, obviously oxygen can be changed into liquid. But we are talking at normal temperature and pressure. And in case of solid, if we talk about solid, so we have sulfur S8. This is called sulfur. Phosphorus P4, and carbon. So these are the elements which are found in solid state. तो ये आपको एलिमेंट्स किस स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में मिलेंगे. तो इसका मतलब ये है, दैट मीन्स कि एलिमेंट्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, मोस्टली नॉन मेटल. ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी. अब बात करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल आर ब्रिटल. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं. तो व्हाट डज इट मीन ब्रिटल? कौन बताएगा? व्हाट डज इट मीन ब्रिटल? ब्रिटल मीन्स क्या होता है बेटा? डू यू नो ब्रिटल?
Actually, brittle means the substance which can be broken down into pieces when we heat it with some hard object. जब आप किसी हैमर से या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से आप इस तरह की सब्सटेंस को बीट करते हैं और इट चेंजेस इनटू स्मॉल पीसेस, दैट मींस इट इज ब्रिटल. मोस्टली स्टोन्स आर ब्रिटल, ब्रिक्स आर ब्रिटल. तो जिस तरह से वो ब्रिटल है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. जैसे ए वेरी कॉमन एग्जांपल, कॉक, कोल जो होता है, कोयला आपने देखा होगा. तो कोयला जो कोल होता है उसको क्या करते हैं, जब आप हैमर से बीट करते हैं, इट कैन बी चेंज इनटू स्मॉल पीसेस. So it is brittle in nature. So most of the non-metals are brittle in nature. अगर हम गैसियस या लिक्विड को छोड़ दें तो गैसियस या लिक्विड तो ब्रिटल नहीं होंगे, बट द नॉन मेटल विच आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट दे आर ब्रिटल इन नेचर. वो नेचर में आपको कैसे मिलेंगे, ब्रिटल मिलेंगे, उनको आप तोड़ सकते हैं. नेक्स्ट, दे आर नॉट डक्टाइल. ठीक है, नंबर 3, दे आर नॉट डक्टाइल. डक्टाइल, ओके, वी स्टडीड अबाउट द डक्टाइलिटी यस्टरडे क्लास, और हमने पढ़ा था डक्टाइलिटी क्या है. इट इज द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इन विच द सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर. सो वी कैन नॉट चेंज एनी नॉन मेटल इनटू थिन वायर. हम नॉन मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन सम स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन इन माइंड. कुछ स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन आता है. मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि हो सकता है कि देयर इज अ क्वेश्चन क्रॉप अप इन योर माइंड दैट वी कैन सी द फाइबर्स. ठीक है, फाइबर्स देखा होगा, थ्रेड देखा होगा. इट इज अ नॉन मेटल बट इट कैन बी चेंज इनटू अ थिन वायर. एक तरह से वो वायर जैसा तो हो गया ना, तो हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल एलिमेंट. हम यहाँ नॉन मेटल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल. हम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे. जब हम जैसे बात करते हैं ना थ्रेड की या किसी फाइबर की बात करते हैं, तो वो जो मैन मेड फाइबर है या आर्टिफिशियल फाइबर है या पॉलीमर्स हैं, तो वो एक्चुअली क्या होते हैं, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा. तो मॉलिक्यूल्स की वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स. तो वो एलिमेंटल फॉर्म में आपको कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं मिलेगा नॉन मेटल में जिसको कि आप थिन वायर बना सकें. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन डक्टाइल. इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. ओके, next property is they are a bad conductor of heat and electricity. Number 4, they are bad conductor of heat and electricity. ये heat और electricity के bad conductor होते हैं. Okay, I agree. They are bad conductor of heat and electricity. You cannot pass electric current through it. ठीक है, and the heat cannot conduct from one part to the other part of non-metal. It is true. But there is exception of it. इसका एक exception भी है. Can anybody tell me the exception of this point? इसका exception कोई बता सकता है? As we are saying, yes, graphite. Graphite is an exception. Graphite is an exception. Graphite यहाँ पर exception है. Graphite is made up of carbon. Okay, it's an allotrope of carbon. ये कार्बन का allotrope है. But can anybody tell me why graphite conduct electric current? What is the reason why graphite conduct electric current? It is non-metal, still it is conducting the current. कोई reason बता सकता है? Can anybody tell me the reason? No? Okay, no problem. Let me explain. Actually, we know there are two reasons by which any element can conduct electric current. One is free electron and second is free ion. If any substance has free electron or free ion, it can easily conduct electric current. But in case of carbon alone, if we talk about the coal, okay, coal does not conduct electric current because it does not have free electron. But same carbon, if it is present in form of graphite, it has one unpaired electron. इसके पास में एक unpaired electron होता है ग्रेफाइट में, ध्यान रखना. ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अनपेयर्ड को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं. ठीक है ना, जो पेयरिंग नहीं कर रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है. तो ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा. ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 5. ओके, एंड द नेक्स्ट इज number 5. Actually we know that non-metals does not have metallic luster. Non-metals does not have metallic luster. आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं दे हैव मेटेलिक लस्टर. उनमें एक मेटल की लस्टर होती है, एक ब्राइटनेस होती है, एक चमक होती है. जो न्यूली एजेस होते हैं, ठीक है, मेटल्स के उनमें एक ब्राइटनेस होती है. बट नॉन मेटल डज नॉट हैव दिस लस्टर. बट स्टिल आई हैव एन एक्सेप्शन हियर. यहाँ पर एक एक्सेप्शन है. वन रेज हैंड. ओके, मोहम्मद सामी. यस मोहम्मद, want to ask anything? Mohammed, yes, want to ask anything? Yes, डायमंड के अंदर लस्टर होता है. Yes, obviously it has luster, but actually we are talking about the element which in all forms can have luster. ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं उसकी सभी फॉर्म में लस्टर होना चाहिए. तो यहां पर एक्सेप्शन इसके है, मैं मना नहीं कर रहा कि इसके एक्सेप्शन नहीं है. इट हैज एक्सेप्शन, ठीक है. और इसके एक्सेप्शन के अंदर आप देख सकते हैं इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज आयोडीन. I2. आयोडीन जो होता है इसमें एक मेटालिक लस्टर होता है. बाकी जैसे आपने कहा ग्रेफाइट क्या डायमंड हो सकता है, डायमंड. लेकिन मैं डायमंड को क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूं? व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग डायमंड? बिकॉज diamond is allotrope of carbon, but there are some other allotrope of carbon which does not have luster, such as अगर हम बात करते हैं कोल की, कोल is also made up of carbon but it does not have luster. डायमंड में होता है, लेकिन हमें वो देखना है जो कि सभी फॉर्म में, ठीक है ना, लस्टरस हो. तो हमें पता है ये जो कार्बन है डायमंड की फॉर्म में तो लस्टरस होगा, लेकिन कोल की फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए मैं इसको एक्सेप्शन में नहीं रख रहा हूं. ठीक है, तो एक्सेप्शन में मैंने केवल किसको रखा है? आयोडीन को रखा है. आयोडीन इन ऑल फॉर्म आर लस्टरस. ठीक है, वो लस्टर शो करता है. इट हैज मेटेलिक लस्टर. यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. पॉइंट नंबर 6. अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, देन वी कैन सी दे आर जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव generally high melting point and boiling point. इनका जो melting point और boiling point होता है वो generally high होता है. Sorry, high नहीं होता, low होता है. Low. They have generally low melting and boiling point. लेकिन exception में high मिलेगा आपको. इसका एक exception बता सकते हैं बेटा? Is there any exception whose melting point and boiling point is very high? जिसका melting point और boiling point बहुत high होता है. ऐसा कोई एक्सेप्शन? डू यू रिमेंबर एनी एक्सेप्शन? इसका एक्सेप्शन हो जाएगा आपके पास ग्रेफाइट. ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन बट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है. नंबर 7, जनरली वी सी दे आर soft, not very hard. ये सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं. बट इन एक्सेप्शन, जैसे सॉफ्ट से मेरा मतलब जैसे सल्फर सॉफ्ट है, फॉस्फोरस सॉफ्ट है. ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो है वो मोस्टली आपको सॉफ्ट मिलेंगे. बट इट हैज एक्सेप्शन इन इट. इसमें भी एक्सेप्शन है. और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन भी बहुत शानदार है. और इसका एक्सेप्शन है दैट इज डायमंड. कार्बन डायमंड की फॉर्म में. तो डायमंड में क्या खास बात है? देखो, एक्चुअली डायमंड इज द नेचुरल ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस. ध्यान रख लेना बेटा, ये जो डायमंड है, डायमंड इज नेचुरल ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस. नेचुरल ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचर में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस.
डायमंड ही है। आपको पूरे नेचर में डायमंड से हार्ड कोई चीज नहीं मिलेगी। एंड दैट्स वाई डायमंड इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग पर्पज। इसको ड्रिलिंग पर्पज में भी यूज में लेते हैं। ड्रिलिंग में जो ड्रिलिंग मशीन होती है, इन द बिगनिंग, इन द टॉप पॉइंट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन देयर इज अ डायमंड फिक्स्ड ऑन इट। उस पर एक डायमंड लगा हुआ रहता है जो उसको ड्रिल करने के काम में आता है। ठीक है ना, ये स्टोन से भी हार्ड है, इवन मेटल से भी हार्ड होता है। ठीक है, तो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि जनरली नॉन मेटल तो सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड जो है इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये सबसे ज्यादा हार्ड है। ओके, तो नेक्स्ट देखें। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, नॉन मेटल्स आर, दे आर नॉट सोनोरस, दे आर नॉट सोनोरस। ठीक है, ये सोनरस नहीं होते। सोनरस से मीन्स क्या है? सोनरस मीन्स सब्सटेंस विच फॉर्म या विच प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक ऑन अ हार्ड सरफेस। तो अगर उसको हार्ड सरफेस पर आप सब्सटेंस को हिट करते हैं तो वो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हम कहते हैं सोनरस है। तो नेचुरल है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसको जब आप हार्ड सरफेस पर हिट करेंगे तो आपको मेटेलिक साउंड नहीं मिलेगा, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉन सोनरस। ये नॉन सोनरस होते हैं, ये सोनरस नहीं होंगे। और एक पॉइंट और है, नंबर 9, देयर डेंसिटी, देयर डेंसिटी इज लो। ठीक है, इनकी जो डेंसिटी होती है ना बेटा, लो होती है। तो आप कह सकते हैं लाइट वेटेड होते हैं, लाइट वेटेड। ठीक है, दे आर लाइट वेटेड, हल्के सब्सटेंस होते हैं। जैसे सल्फर है, काफी लाइट वेट होता है। ठीक है, फॉस्फोरस लाइट वेटेड होता है, बट मेटल्स का वेट ज्यादा होता है, बिकॉज मेटल हैव हाई डेंसिटी। ये कल हम बात कर चुके हैं कि डेंसिटी क्या चीज होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल ज्यादा है तो वो हैवी होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो वो लाइट वेटेड होगा। तो मोस्टली नॉन मेटल्स आर लाइट वेटेड। ओके, उनका जो डेंसिटी है वो कम देखने को मिलता है आपको। So these are some of the characters of non-metals। तो ये हमने कुछ कैरेक्टर्स देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं। ठीक है, नॉन मेटल के बारे में। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बात हो गई, दीज ऑल वर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पता है क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फाइंड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आप किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी को मेजर कर सके तो फिजिकल है, और अगर बिना चेंज किए हुए आप उसको मेजर नहीं कर सके तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है। तो जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं तो उस सब्सटेंस से, जब आप वो केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं तो कुछ नया सब्सटेंस ही बन जाता है। ठीक है, उसकी केमिकल जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, वो चेंज हो जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया तो नया सब्सटेंस बन गया, तभी आप उसको स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली जो हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं दैट इज, वो है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अगर आप किसी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा, देखते हैं। देखिए, सपोज वी हैव मेटल प्लस ऑक्सीजन, इट गिव मेटल ऑक्साइड। तो पहले हम ध्यान रखना, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर नॉन मेटल की करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, इट ऑलवेज फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एंड थिंग टू रिमेंबर द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये नेचर में बेसिक होते हैं, साथ ही साथ दे फॉर्म बेस इन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर सॉल्यूशन। ठीक है ना, जब इनका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, अब वाटर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे।
तो ये मेटल ऑक्साइड जो है वो हमेशा बेसिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, एसिड बेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एसिड एंड बेस इन प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, एंड वी स्टडीड दैट बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी वो सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस रिलीज करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड जो है जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट मेटल ले रहे हैं हम, दैट इज सोडियम Na, and if it react with oxygen O2 it will form metal oxide। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो समझने वाली है कि इससे बनने वाले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, विच मोस्टली स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। देखिए NaNO2, यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करने वाले हैं आपस में। सोडियम हैज +1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 1 पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन हैज -2 चार्ज ऑन इट। ठीक है, ये वैलेंसी ये चार्ज आपको पता होना चाहिए तो आपको कंपाउंड बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो इससे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी बेटा ध्यान रखना, इन दैट कंपाउंड द चार्जेस विल एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ नीचे ट्रांसफर कर दें, सॉरी यहाँ चार्ज यहाँ ट्रांसफर कर दें, 1 है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, और ये 2 जो है वो यहाँ नीचे ट्रांसफर कर दें। तो ये क्या बन गया, Na2O सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास कंपाउंड की, दैट इज Na2O सोडियम ऑक्साइड। दिस इज सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है। अब हमने एक बात कही आपको कि ये जो सोडियम ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है। जैसे मेटल ऑक्साइड तो है ही भाई, सोडियम मेटल एंड इट इज प्रेजेंट विद ऑक्सीजन, दैट मींस इट इज मेटल ऑक्साइड, एंड वी नो दैट मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। व्हेन इट इज dissolved in water it will form a base। Let's see, when we will dissolve this, what happen, sodium oxide, okay, metal oxide, this is sodium oxide, sodium oxide, we are going to dissolve it into water, we are going to dissolve it into water। Let's see, तो जैसे हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे it will form NaOH, okay, sodium hydroxide। What did it form? Sodium hydroxide, sodium hydroxide, and this sodium hydroxide has hydroxide in it, इसमें ये hydroxide है, and due to the presence of this hydroxide it is basic in nature। ये कैसा है, it is basic in nature। ठीक है, it is basic in nature, ये nature में basic है। That's why we are saying, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि when metal react with oxygen it form metal oxide, and all the metal oxide are when dissolved in water they form base। ठीक है, and they are basic in nature। तो वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ठीक है, so that it can be understood better। Let's see, let's have another example। Suppose we have magnesium, this is magnesium, okay, magnesium is a metal। If we react magnesium with oxygen, okay, this reaction we have already studied in first chapter। If magnesium is burnt in the presence of oxygen it will form magnesium oxide, white powder, 2MgO, it will form 2MgO, तो 2MgO की फॉर्मेशन करेगा ये, and this MgO is magnesium oxide, this is magnesium oxide, and we know this magnesium oxide is basic in nature, basic oxide है ये, ठीक है। अब basic oxide क्यों है, आप इसको water में dissolve करके देख लें, you can check it by dissolving it into water। If it forms magnesium hydroxide then we can say it is basic in nature। Let's see, magnesium oxide reacting with H2O will form magnesium hydroxide, okay, so this is metal oxide, this is water, and now it is forming magnesium hydroxide, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होगी बेटा, हमने कहा था कि अगर आपको दिख रहा है किसी कंपाउंड में OH माइनस आयन प्रेजेंट है तो इट इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर।
तो यहां पर इसका नेचर भी कैसा है, बेसिक है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, and when metal oxide is dissolved in water it form hydroxide, and hydroxides are basic in nature. Okay, next is who is asking, let me see. Yes, there was a student who was asking question, I don't know. Yes, let's see, move further. Anybody want to ask anything beta? Let's move further. आगे चले. Any doubt? If you have any doubt, you can ask. And if you don't have any doubt, then we will move ahead. Okay. Let's move on. Yes, हाँ बोलिए. वीडियो नहीं आ रहा. Okay, जो लास्ट में बताया उसको वापस से एक्सप्लेन कर दें. Okay, no problem. Listen carefully. देखिए, इस पूरी रिएक्शन में, इस पूरे प्रोसेस में मैंने जो पढ़ाया आपको, वहां मैंने 2-3 चीजें बताई हैं। पहली चीज, अगर आपके पास कोई भी मेटल है, मेटल मीन्स सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, पोटेशियम, सो ऑन, कोई भी मेटल हो सकता है। इफ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, सो ऑलवेज मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया मेटल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है ना, इसको लर्न करना जरूरी नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनकी वैलेंसीज कितनी है। जैसे कि एग्जांपल मैं देखो यहां ले रहा हूं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर। अब ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो हमें पता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ एनीबडी कैन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, what will be the molecular formula of aluminum oxide? कोई बता सकता है बेटा आप में से? Is there anybody who can tell me what should be the molecular formula of aluminum oxide? No? Waiting for your response. Yes. Formula of aluminum oxide. Okay, Al2O3. Okay, great, very good. तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि हमें ये तो पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, बट सम स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड. बट हाउ कैन यू राइट द करेक्ट फॉर्मूला? What you have to do is you have to remember the valencies of elements, such as we know Al is 3 plus and oxygen is 2 minus. Okay, so these two elements are combining to form aluminum oxide. So now what I told you in previous explanation, that whenever two ions connect with each other to form a molecule, they exchange their charges. 3 plus charge of aluminum will transfer on oxygen and 2 minus charge of oxygen will transfer to Al. So let's see what formula they will form. इसका जो 3 charge है, 3 plus charge, it will go there. Okay, and the 2 minus charge of oxygen will be here. So now the formula is Al2O3. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Al2O3. ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। एंड आफ्टर दैट वी विल बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। पहले हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बैलेंस कर देते हैं। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है? जैसे सपोज वी हैव 2 क्लोरीन, 2 एल्युमिनियम, 1 3 ऑक्सीजन। सो इफ आई प्लेस 2 हियर, नाउ द एल्युमिनियम आर 4, तो यहाँ मैं 4 लगा देता हूँ, एंड ऑक्सीजन आर 6, तो यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ। नाउ इट इज बैलेंस। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दी कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो मेटल ऑक्साइड होता है, कर रहा हूं, ये जो मेटल ऑक्साइड होता है, इस मेटल ऑक्साइड को, ठीक है, दिस मेटल ऑक्साइड, इसको जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर, इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखें, मेटल ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, it form always metal hydroxide. It will form metal hydroxide, and we know that metal hydroxides are basic in nature. तो metal hydroxides क्या होते हैं? बेस होते हैं बेटा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड जो होता है वो OH होता है, OH माइनस। तो जो भी हाइड्रोक्साइड होंगे उनमें OH माइनस आएगा, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन हमने इसका एग्जांपल देखा है, मैग्नीशियम इज अ मेटल reacting with oxygen
It is formed magnesium oxide, which is basic in nature. When this magnesium oxide is dissolved in water, H2O is water. When magnesium oxide, metal oxide, basic oxide is dissolved in water, it will form magnesium hydroxide. So hydroxide is here, and due to this, the presence of this hydroxide, this will be basic solution. ये solution कैसा हो जाएगा? Basic हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक, चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं. तो यहां आपने इसको देख लिया कि जब आप मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में बेसिक सॉल्यूशन बनाता है. ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड. एसिड के साथ में हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन देख रहे हैं. So if we are talking about metal oxide, as I said earlier, it is basic in nature. ठीक है, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? इट इज बेसिक इन नेचर. ये नेचर में बेसिक होता है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है जब आप बेस को एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है. एक मेरे को पीछे से कुछ आवाज सुनाई दे रही है. लेट मी सी, क्या किसी का ऑडियो ऑन है? हुज ऑडियो इज ऑन? हर्ष खंडेलवाल. यस सर, आपका ऑडियो ऑन है बेटा. बैकग्राउंड वॉइस इज ऑडियो. टर्न ऑफ योर ऑडियो. यस, लेट्स मूव ऑन. एक बार मैं पहले अटेंडेंस ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन. वैसे एक्चुअली टाइम इज जस्ट वेट बेटा ना, डोंट लेफ्ट, just a moment. Okay, yes, one more reaction. There is only one more reaction which we are going to discuss, that is reaction of metal oxide with acid. अगर हम किसी metal oxide को, suppose we have a metal oxide and we react this metal oxide with acid, अगर हम इसकी acid से reaction कराते हैं, okay, so it will, we know that metal oxide is basic in nature. It is basic in nature, and reacting with acid, it will form salt plus water. Okay, ये salt और water की formation करेगा. This is characteristic reaction of metal oxide. क्योंकि हम ये कह रहे हैं metal oxide basic होता है, तो obviously वो acid के साथ reaction करके salt बनाएगा. क्योंकि हमेशा acid और जो base है, they react with each other. Let's see an example. Suppose we have a metal oxide Na2O, okay, and we have acid H2SO4. Okay, this is sodium oxide. So sodium oxide is basic. Okay, it is acting like a base, and this is sulfuric acid. This is sulfuric acid, and sulfuric acid is acid, and we know that acid and base react with each other and they form सॉल्ट. तो यहाँ सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी. देखिए सॉल्ट कैसे बनेगा? सोडियम एंड सल्फेट, Na2SO4 एंड H2O. देखिए H2O, वाटर विल रिमूव. तो दिस इज सॉल्ट. ये आपके पास जो बना है, दिस इज सोडियम सल्फेट, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर. दिस इज जस्ट लाइक ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है. तो ये चीज ध्यान रखनी है. If you react any metal oxide with acid, they will always form a salt and water, and it proves that metal oxides are basic in nature because it is reacting with acid. If it is not basic, it will not react with acid. It is basic, that's why it is forming a salt. Yes, there is a student who want to ask something. 2 students. Yes.